Good morning, students. Hope you understand the concept of planning and controlling in a batch production. How we are making a scheduling, how we do economic order quantity we are identifying, material requirement planning is done, and line of balancing is done. Now the problem and prospects of the batch production. Basically, the basic problem in a batch production is a work in progress inventory and the lead time, which is very large in case of batch production. So, requirement planning is the tool to overcome this type of problem. Material requirement planning can be done by computerization should be there. Kanban system is also there of Japan, which help to reduce the lead time, work in progress inventory also. A Kanban is a technique you can say where you are using a card, label, computer order or other device which used to signal that more product or a part are needed from the previous process step or not. Okay, Kanban contain information on the exact product and component specification that are needed for the subsequent process. So by all these things, they can control work in progress inventory, production and inventory flow, so that without wastage of time, without a bulk of inventory in some place, they can produce a goods in a minimum time effectively. Then we have a flexible manufacturing system also that we can use. Operations are linked with a material handling system controlled by computerization system over here. Then a problem of batch scheduling. We have some three batching method you can say for making a batch here. Individual batch size for each part. आप पार्ट्स को लेके आप बैच बना सकते हैं. ठीक है. सपोज यू नीडेड अ टायर फॉर योर प्रोडक्ट कार, तो आपने टायर्स का लेके एक अलग से बैच बना दिया. क्लियर. एग्रीगेशन ऑफ पार्ट विच आर ट्रीटेड एज अ वन बैच. देन आपने जो है कुछ पार्ट्स को जो है एग्रीगेट कर लिया सिमिलर पार्ट से, जैसे स्क्रू है बट देयर डायमेंशंस आर डिफरेंट. आपने एक बैच बना लिया उसका, मीन्स सिमिलर पार्ट्स जो थे उनको एग्रीगेट करा. या फिर फिक्स बैच क्वांटिटी फॉर द प्रोडक्ट रेदर देन पार्ट्स. आप पार्ट्स ना बना के आप पूरे प्रोडक्ट का ही बैच बना रहे हैं. मीन्स यू आर मेकिंग अ कार इन अ सिंगल बैच. आप एक उसका पार्ट नहीं बना रहे. तो इट्स अप टू यू कि विच गिव यू अ मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर इकोनॉमिकल. तो आप इनको देख के बैचेस भी बना सकते हैं कि किस क्या बेस होना चाहिए आपके बैच का. मीन्स डिसाइड द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द बैच एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. तो इट डिफिकल्टी टू चूज शेड्यूलिंग सीक्वेंस. तो objective is to whatever your objective, you have to keep it in your mind that you want to reduce idle time, work in progress and production cost. The problem can be solved by scrutinizing the product range और पार्ट्स. आप जो है स्क्रूटनाइज कर लीजिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं और कौन से पार्ट्स बनाने हैं. यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम विद दैट ऑल्सो. यू कैन ट्रबल्स सम जो जॉब्स हैं आप उन्हें, जो ट्रबलसम जॉब्स होंगे आप उन्हें कट डाउन कर दीजिए. या फिर इट कैन बी सॉल्व बाय गिविंग अ एक्सेस कैपेसिटी. अगर आप एक्सेस कैपेसिटी रखेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. सो इट इज़ अप टू यू कि विच सॉल्यूशन विल वर्क फॉर यू in your problem. Clear? Now, next is a planning and control of job shop production. अब job shop क्या होती है? Basically, when variety of jobs are there and each job is different from other. And in batch production, continuous demand is there. Production exceed the demand. Job are predictable. Okay. एंड इन जॉब शॉप जॉब्स एंड डिमांड आर अनप्रडिक्टेबल. आपको नहीं मालूम है कि आपको किस तरह की जॉब, किस तरह की डिमांड आएगी. सपोज यू आर अ स्मॉल बेकरी शॉप, कस्टमाइज बेकरी शॉप. यू डोंट नो कि आपको जो है कब केक के ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे, किस दिन ज़्यादा मिलेंगे और किस तरीके के केक का ऑर्डर आ सकता है. ठीक है. अ कस्टमाइज केक की शॉप है तो इट मीन्स आपके पास जो भी आप केक बनाएंगे दैट इज़ ए यूनिक. Okay, it handle a unique job each time with
unique set of operations and processing time. We are using a general purpose machine over here. Sequencing of each job is unique depending upon the technological requirement. It has a complex waiting line system. क्योंकि आप सिंगल मशीन्स हैं, उसी में काम हो रहा है, एक जॉब फिनिश होगी तब दूसरी जॉब उस पर परफॉर्म हो रही है, ठीक है. तो वेटिंग टाइम में भी वो, therefore the job has to wait for machine, each machine has to wait a line of job. ठीक है, दोनों वाइस वर्सा हो सकता है कि आपका आइडल टाइम रह सकता है, मशीन वेट कर रही कोई जॉब आए, ठीक है, या फिर मशीन में काम हो रहा है और जॉब्स को वेट करना पड़ रहा है प्रोसेस होने के लिए. प्लानिंग इज हेयर की सेटिंग अ प्रायोरिटी. द बेसिक थिंग इज हेयर इज टू सेटिंग अ प्रायोरिटी ऑफ अ जॉब फॉर मशीन, कि कौन सी जॉब पहले परफॉर्म करनी मशीन में, कौन सी बाद में करनी है. दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट planning over here. Planning of job shop, it means a scheduling. Okay, यहाँ आपको scheduling and job waiting are waiting for M machines there. Each job has a predefined sequence and processing time. Problem of loading the job is there, कि कौन सी मशीन में कौन सी जॉब जो है कब लोड करनी है, ताकि आपको ऑप्टिमाइज कर सके उसकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को. You need to improve their expected performance standards. So basically, the main advantage of job shop is they are using a general purpose machines. So they are able to give you a variety. Operator will become more skilled and competent as each job given, and them a learning opportunity. Full potential of operators can be utilized. Opportunity exists for creative method, innovative ideas over here. Limitation: high cost due to frequent setup change, क्योंकि हर जॉब के लिए अलग अलग सेटअप चाहिए, ठीक है. इन्वेंट्री लेवल इज हाई, costs are high over here. Planning is complicated and large space is required because you are providing a customized varieties of jobs over here. So the main objective is expected performance standard. What is your expected performance standard? आप क्या चाहते हैं, किस स्टैंडर्ड को अचीव करना है? You want a mean flow time to reduce, total processing time, idle time of machine, कि कितने टाइम के लिए मशीन आपकी खाली है, मीन अर्ली और लेटनेस ऑफ द जॉब, आपकी कितनी जल्द से जल्द आप जॉब या टाइम ख़त्म होने के बाद कितना लेट जॉब को परफॉर्म करेंगे, उसका मीन टाइम आप रिड्यूस करना चाहते हैं क्या. ये मीन टार्डीनेस ऑफ द जॉब क्या है आपकी, आपको वो देखना. टार्डीनेस मीन्स कितना आप डिले कर सकते हैं आफ्टर ड्यू डेट. ऑल्सो मीन वेटिंग टाइम, कितना वेट कराना है अगर आपके पास कोई जॉब आ रही है. तो यू हैव टू डिसाइड ऑल दीज थिंग्स कि आपका एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है, आप किसके स्टैंडर्ड के बेसिस पे आप अपनी जॉब्स को शेड्यूल कर रहे हैं. देन वी हैव अ फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्यूशन. जो भी आप सॉल्यूशन लेंगे उसमें जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो है आपके टोटल नंबर ऑफ जॉब फॉर शेड्यूलिंग. आपकी नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है. एज योर नंबर ऑफ जॉब विल इंक्रीज, योर शेड्यूलिंग प्रॉब्लम विल इंक्रीजेज. नंबर ऑफ मशीन्स, अगर नंबर ऑफ मशीन्स आपके पास ज़्यादा है तो माइट बी योर शेड्यूलिंग प्रॉब्लम समवट मिनिमाइज्ड. मशीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आपकी किस तरीके की है, व्हाट टाइप ऑफ लेआउट यू आर यूजिंग, इट इम्पॉर्टेंट. देन नेचर ऑफ जॉब अराइवल कैसा है, स्टैटिक है डायनेमिक है. स्टैटिक है देन इट्स ओके बिकॉज यू नो वेरी वेल कि किस टाइप की जॉब आएगी. आपको डिमांड नहीं मालूम है कितनी होगी, बट आपको मालूम है कि मेरे पास इसी टाइप की जॉब्स आती हैं, ठीक है. बट डायनेमिक में क्या है, एवरी टाइम यू गेट अ न्यू यूनिक डिमांड, ठीक है. आपकी पहली जॉब और आप दूसरी जॉब में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है. और आपकी जो जॉब है कभी भी आ सकती है, कोई भी आके कभी भी ऑर्डर दे सकता है. स्टैटिक में क्या है, वी हैव अ फिक्स टाइम पीरियड ऑल्सो, कि इतने से इतने बजे तक ही वो जॉब्स आएंगी. तो यू आर एबल टू मेकिंग अ शेड्यूल प्लानिंग ईजीली, ठीक है. नेचर ऑफ अराइवल किस तरीके का है जॉब्स का बेसिकली. सो यहाँ पर क्या है, मीन्स you can you solve your problem with the help of जो शेड्यूलिंग की हमारी प्रॉब्लम होती है कि एन जॉब वन मशीन. नाउ वी आर गोइंग टू कवर वन बाय वन कि कितनी जॉब्स होंगी, कितनी मशीन्स होंगी, कैसे हम शेड्यूलिंग करेंगे.
in a very simple language you can say, as number of machine goes up, problem of scheduling goes up. ठीक है, तो सॉल्यूशन इज सिमुलेशन. आप सिमुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम होता है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं. फाइन, आप उनके बेसिस में, और यू कैन यूज़ अ ग्राफिकल मेथड ऑल्सो, उसके बेसिस में आप इसकी शेड्यूलिंग करते हैं. ठीक है, कि यू आर मेकिंग अ सीक्वेंस कि विच जॉब इज परफॉर्म व्हेन एंड बाय व्हाट टाइम. क्लियर? We have a certain situation over here which we will cover in the next lecture. First situation is n job one machine, means आपके पास जो है number of jobs हैं, the jobs are very much, मगर मशीन एक ही है. लाइक आप ये कह सकते हैं कि आप हेयर स्टाइलिस्ट के पास चले गए. ठीक है, बार्बर शॉप में चले गए. एक ही जना है जो आपकी हेयर स्टाइल करता है, मगर वहाँ पर हेयर स्टाइल करवाने वाले जो उसके कस्टमर है वो लाइन से बहुत ज़्यादा हैं. तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, तो आप उसे कैसे टैकल करेंगे. देन वी हैव अ एन जॉब टू मशीन सिचुएशन, कि अगर आपके पास एन जॉब है मगर 2 मशीन है काम करने के लिए, देन आप कैसे शेड्यूलिंग करेंगे. देन यू हैव अ 2 जॉब एम मशीन सिचुएशंस, हाउ टू हैंडल दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. देन यू हैव एन जॉब एंड 3 मशीन्स. तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. तो इनमें हम किस तरीके से शेड्यूल करते हैं जॉब्स को, वी विल सी दिस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. आई एडवाइज़ यू कि अगर पॉसिबल हो तो आप लोग जो है एक बार इसको रीड कर लें, तभी आपको ये समझ में ईजीली आएगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.